بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس گھر میں روزانہ شام کے وقت معوذ 3 سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ کثرت سے نیکی کرنے سے انسان باروب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کا پیٹ کی کوئی بیماری ہلاک کر دے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر بلی کسی برتن میں سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو تقریباً 20 دن بعد مباشرت کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کیا کریں، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کوشش کریں ہر مہینے میں 2 سے 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہوتا جائے گا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک والے پانی میں ڈبو دیں، ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور معدے میں جلن نہیں ہوگی۔ ہلدی کا پاؤڈر پان میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈارک براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ اگر صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف ادب سے دیکھ لیا کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلونجی لازم استعمال کریں اور نہار منہ 4 گلاس پانی پیا کریں۔ انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 70 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ لیمو کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، البتہ اس کا زیادہ استعمال قوت بہا کو متاثر کر سکتا ہے۔ لہسن کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب ہی کھانا کھائیں۔ رات کو زیادہ دیر تک موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے؟ مالٹا کھانے سے انسانی سکن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں تو
अपनी खामोशी से करें। नजर की कमजोरी से बचना चाहते हो तो देसी अंडे का इस्तेमाल रात को किया करें। छोटे बच्चे को दूध में सौंफ डालकर पिलाया करें, कभी भी बदहजमी का मसला नहीं होगा। चेहरे के दानों के लिए एलोवेरा का पत्ता इंतहाई मुफीद चीज है। एलोवेरा को काट कर इसको माथे और हाथ में दाने वाली जगह पर लगाएं। बदहजमी की प्रॉब्लम हो तो चावलों का पानी पियो, इससे फौरी बदहजमी का मसला ठीक हो जाता है। जिस पानी में अंडा उबाला जाए इस पानी से मुंह धो लिया करें, इससे मुंह की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। चावलों का पानी उबाल कर पीने से कब्ज दूर होगी, बदहजमी का मसला दूर हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। अगर पेट बढ़ने लगे तो कलवंजी का दाना खा लो। जिस बंदे की सांस फूल जाए वो आड़ू खाएं, सांस का मसला ठीक होगा। बंद जूते ज्यादा पहनोगे तो नजर और दिमाग दोनों कमजोर होंगे। गोश्त खाने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कभी खराब नहीं होता? शहद जितना अरसा भी पड़ा रहे हमेशा ताजा रहता है। पुदीने का रस हैजे को खत्म करने में मुफीद है। दोपहर को सुरमा लगाना मौजरे सेहत होता है, जबकि रात को सुरमा लगाने से नजर तेज होती है। खड़े होकर पाजामा पहनने से ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको आप जान भी नहीं सकते। आफियत की कदर उनको होती है जो मुसीबत का शिकार हुए हों। सोने से कबल नीम गर्म पानी पीने से गुर्दों की सफाई हो जाती है। सुबह उठकर नीम गर्म पानी पीने से गुर्दों की बीमारी से बचा जा सकता है। जुबान को हमेशा कैदी बनाकर रखो, इसी में तुम्हारा फायदा है। निहार मुंह माथे पर बादाम के तेल की मालिश करने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। अगर आप जवानी हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हो तो सुबह उठते ही नीम गर्म पानी में खजूर का दाना भिगोकर खा लें। मसाना कमजोर हो जाए और मैदे में जलन हो तो निहार मुंह दही के साथ इसबगोल का छिलका आपकी तकलीफ को दूर करेगा। चेहरे पर छाइयां हो तो मुंह पर मक्खन लगाकर सो जाओ, 2 दिन में छाइयां गायब हो जाएंगी। ठंडा पानी अगर जवानी में आपको बीमार ना करें लेकिन बुढ़ापे में वो आपको जरूर बीमार करेगा। मसाने की कमजोरी में आम खाने से गुरेज करें। अगर जुबान का रंग पीला पड़ जाए तो आपको यरकान का मसला है। अगर जुबान खट्टी हो जाए तो समझ जाओ मैदा खराब है। बालों में दूध लगाने से बालों की जिल्द और जड़ों को ग़िज़ाइयत और कुव्वत मिलती है। इल्म के बराबर कोई शराफत नहीं और इल्म जैसी कोई ताकत नहीं। दांत में या मसूड़ों में दर्द हो तो नीम गर्म पानी में एक टुकड़ा फटकड़ी का डालकर इसे दांतों पर लगा लें। निहार मुंह अंडे की सफेदी खाओ, मैदा ठीक रहेगा। निहार मुंह कोई भी फल खा लो, मैदे की जलन खत्म हो जाएगी। खरबूजे के खुश्क बीज खाने से दिमाग में बेबहा ताकत आती है। रोजाना नींबू का पानी पिया जाए तो हर 7 दिन बाद आधा किलो चर्बी कम हो सकती है। जिसको कमर के दर्द की शिकायत रहती है इसको कैंसर कभी नहीं होता। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। अंगूर पर नमक लगाकर खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। सूखी हुई खजूर को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है और दिल की बीमारी से भी बचा जा सकता है। खरबूजे के बाद दूध या पानी पीने से गुरेज करें, क्योंकि इससे बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। गंदम के दाने शहद के साथ खाने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। पाँव की मालिश करने से कमर की तकलीफ और दर्द से निजात मिल सकती है। दूध पीने के बाद बंद गोभी इस्तेमाल करने से हैजा हो सकता है।
फूलों की खुशबू ज्यादा सूंघने से जिंदगी भर डिप्रेशन नहीं होता। प्याज के इस्तेमाल से खून पतला रहता है, खून की रवानी बेहतर रहती है। आबे ज़मज़म जिस बीमारी के लिए पिया जाता है ये शफा देता है। बादाम खाने से जहानत में इजाफा होता है। हफ्ते में झुर्रियां गायब करनी है तो एलोवेरा को काट कर झुर्रियों वाली जगह पर लगा दें। सांवली औरतें अंडे की सफेदी और टूथपेस्ट मिलाकर चेहरे पर लगाएं, इससे रंगत निखरती है और जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। उल्टे हाथ से पानी पीने से पेट में मरोड़ जैसे अमराज पैदा होते हैं। चेहरे की जिल्द चमकती दमकती बनानी है तो चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करो। जिन लोगों को बलगम का मसला ज्यादा हो वो रोजाना खजूरें खाया करें। किसी के एहसान और नेकी का जल्दी से बदला उतार देना नहायत शराफत और बुजुर्गी की अलामत है। देसी घी में शहद मिलाकर खाने से नजर की कमजोरी दूर हो जाती है। गुलाब के फूल को पानी में उबालकर पीने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। निहार मुंह सीधे खड़े होकर 2 मिनट तक अपने पैरों के अंगूठों को देखने से कतरा कतरा पेशाब आने की बीमारी खत्म हो जाती है। शाम के वक्त गोश्त ना खाया करें, कैंसर से जिंदगी भर बचे रहोगे। खारिश से जान छुड़वानी है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर पूरे जिस्म पर लगाएं। अगर आप दही से अच्छा फायदा चाहते हैं और पूरी ग़िज़ाइयत चाहते हैं तो इसमें कुछ शामिल ना करें, बगैर चीनी के इस्तेमाल करें। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्मानी बीमारी खत्म हो जाती है। जिन औरतों में खून की कमी हो वो सरसों के तेल से बदन पर मालिश करें। ज्यादा ठंडा पानी से नहाने से बाल गिर जाते हैं। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त भी आसानी होती है। नेमत पर खुश होने की बजाय इसका शुक्र बजा लाना और मुसीबत में घबराने की बजाय इस पर सब्र करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दस्तरखान पर गिरे टुकड़े उठा कर खाने वाला बंदा कभी बीमारी में मुब्तला नहीं होता। जिनको मर्दाना कमजोरी का मसला हो वो हफ्ते में 2 बार गाय का गोश्त खा लें। चंद दिनों में आपको फर्क नजर आएगा। नाश्ते के बाद पानी पीने से मोटापा हावी हो जाता है। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं। घर से निकलते वक्त इस्तगफार का विर्द करें, आपके रिज्क में कभी कमी नहीं आएगी। सौंफ खाने में ज्यादा इस्तेमाल करने से नज़ला जुकाम खत्म हो जाता है। दांतों में खून आने से रोकने के लिए 1 लीमू का रस, 1 प्याली नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे करें। जो औरत नाफ में अदरक रखकर सोएगी वो कभी मोटी नहीं होगी। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीचिंग मिल्क की बजाय अगर दूध इस्तेमाल किया जाए तो इससे चेहरे की मैल भी निकल जाएगी और जिल्द मुलायम महसूस होगी। दिमाग को तेज करना है कि कोई बात ना भूले तो सूरजमुखी के तेल से माथे की मालिश करें। ज्यादा ठंडा पानी मैदे की बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर की बीमारी का सबब बनता है। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सोने और उठने का मामूल परिंदों जैसा बना लो, क्योंकि रिज़्क की तलाश करने का मुनासिब वक्त परिंदे ही इंतखाब करते हैं।